episode 9 of T20 Master Blaster series. In episode 8, we discussed about our exercise 3.1 and 3.2, that is how to frame a pair of linear equation from the given statement and how to use graphical method as well as talking about coefficients to discuss about the solution of that pair of linear equations. In this particular episode, we are going to discuss algebraic methods to solve the pair of linear equations. So guys, my name is Deepak Sharma and today we are going to solve this pair of linear equation using our algebraic methods. Now in total, how many algebraic methods are there? There are 3 algebraic methods mainly known as, the one is called elimination method, other one is known as substitution method, and the last one is cross multiplication method. So I'm going to apply these all 3 methods on this single question one by one to get the answers with respect to each different method. So buckle up your belts and we are going to solve this question. First of all, let's look at the structure of the question. Let's look at the statement given to us because it is going to play a very vital role to understand the equations given to us first. Now if you look at this equation, the first one is quite simple equation, 3x plus 2y equal to 4. We have to solve this pair of linear equation. The other one is a little bit tricky one because the coefficients given over here are rationals, okay, and there are negative entries too. So minus 1 by 2x plus 2 by 3y equals to minus 1. So I'm going to first simplify the equation 2. Rewriting, so this is our first step, which is going to be your first step too while attempting this question. Writing equation 2, rewriting equation 2 using LCM. हम इसमें यूज करेंगे LCM को. वी गेट, क्या आया, हमने LCM को अगर यूज किया, इसका LCM बनेगा 6, तो मेरे पास आएगा माइनस 3x प्लस 4y equals to minus of 6. Let this is equation number 3. If you simplify, you will get this equation on taking the LCM of this coefficient 1 by 2 and 2 by 3, and you will get this pair of equation now. So I'm going to solve equation number 1 and equation number 3 by elimination method. The first method I'm going to discuss here is elimination. Therefore, given equations are, so what are the equations? 3x plus 2y equals to 4, and this equation is minus 3x plus 4y equals to minus 6. Now, do I need to equate the coefficients? Elimination कहता है coefficient बराबर कीजिए, अगर नहीं है और अगर है तो सीधा ही कर दीजिए. अब देखिए x के केस में तो कोफिशिएंट ऑलरेडी बराबर हैं, ऑपोजिट साइन के हैं, मैं अगर ऐड कर दूंगा मेरा x एलिमिनेट हो जाएगा. एलिमिनेशन का काम ही यही है, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, या x या y. अब कैसे करना है? कोफिशिएंट बराबर करके, अगर नहीं है तो, मगर यहाँ पे तो ऑलरेडी कोफिशिएंट बराबर हो गए बिकॉज ऑफ द LCM नाउ. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, सो दिस इज इक्वेशन 1 and equation 3. I am now rewriting them as equation 4 and equation 5 because I am working on this pair now. No problem. Add equation 4 and equation 5. We get, once you add it, what happens? Just check this. 3x and 3x get cancelled out. 4y plus 2y gives you 6y equals to 4 plus minus 6. So 4 minus 6, 4 minus 6 is minus 2. This implies y is equal to minus 2 by 6, which is equal to minus 1 by 3. So हमारे पास y की वैल्यू आ गई है minus 1 by 3. And by what method we are working right now? Elimination. So what does elimination says? Once you eliminate one variable and you get the answer for the other one, you whatever you got for the answer for the other variable, put in any one of the equations to get the answer for the remaining variable. Now remaining variable is x. So what we are going to do? Put y is equal to minus 1 by 3 in equation 4. So in this equation 4, we are going to substitute y as minus 1 by 3. Let's see what we get over here. 3x plus 2 into minus 1 by 3 is equal to 4. Now if you see, when you substitute this, the equation gets converted into one variable only. तो हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल का आंसर आएगा x का. तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं. I got 3x minus 2 by 3 is equal to 4. 3x is equal to 4 plus 2 by 3. If I solve the LCM, what I get? 14 by 3. This implies x is further going to have, now this 3 goes to the other side, I get a 14 by 9, and this is my
x वेरिएबल। सो द क्वेश्चन निकालने का, आंसर निकालने का पर्पस क्या होता है, हमेशा हमें वेरिएबल x और y की वैल्यूज निकालनी होती हैं। तो y आ गया -1/3 और x आ गया 14/9। क्या ये बिल्कुल सही आंसर है? किसी भी एक इक्वेशन में पुट कीजिए, अगर आपके आंसर्स मैच कर गए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई, दोनों को पुट करने पे इसका मतलब आपका आंसर सही है। तो जल्दी से इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। मैं क्या करने वाला हूं, x और y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डालने वाला हूं। x है 14/9, सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 14/9 प्लस y है -1/3, सो 2 इंटू -1/3। अगर इसका आंसर 4 आ गया तो हमारा आंसर सही है। सो दिस इज 339, सो व्हाट आई गेट ओवर हियर इज 14/3 - 2/3, 14/3 - 2/3 विच इज इक्वल टू 12/3 विच इज इक्वल टू 4, और ये राइट हैंड साइड के बराबर है। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो देखा कैसे एक पेयर ऑफ इक्वेशन जो हमारे पास गिवन था, हमने उसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया। अब मैं इसे सॉल्व करने वाला हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैं क्या करूंगा, मैं अप टू इक्वेशन नंबर 3 तक प्रोसेस सही रखूंगा, उसके बाद हम बात करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। सो लेट्स हैव अ क्विक लुक एट द सब्स्टिट्यूशन मेथड नाउ। सो नाउ ऑन द सेम क्वेश्चन मैं आपको सिखाने वाला हूं, मैं आपको दिखाने वाला हूं कैसे हम करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता था, जो भी इक्वेशंस हैं हमारे पास, किसी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल को दूसरे की फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए। तो मेरे पास इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वेशंस आई थी 4 और 5। अब यहां से मैं किसी एक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने वाला हूं। कैसे सिंप्लीफाई होगा, जस्ट चेक दिस। फ्रॉम इक्वेशन 5 4y is equal to -6 प्लस 3x, ये माइनस का 3x उधर गया, प्लस का हो जाएगा। यहां से मेरे पास क्या आएगा, देखिए यहां 2y है, तो मैं यहां पे 2y की वैल्यू क्या लिखने वाला हूं, इट इज इक्वल टू 3x - 6/2। मैं 4 को लिख सकता हूं ना, इक्वल टू 2 इंटू 2, सो एक 2 इस तरफ रखा और उसको डाल दिया है उस तरफ, तो ये मेरे पास आया 2y, इसे मैंने मान लिया है इक्वेशन नंबर 6। तो पहला स्टेप हमेशा सब्स्टिट्यूशन का यही होता है कि आप एक वेरिएबल कन्वर्ट करोगे किसी दूसरे की फॉर्म में, उनमें से किसी भी एक इक्वेशन को उठा के। मैंने y को इन टर्म्स ऑफ x लिखा है, आप चाहे x को इन टर्म्स ऑफ y कर दीजिए, बोथ आर वेलकम आंसर, आपको कोई कुछ भी गलत नहीं करेगा कहीं पे। मगर इसके बाद का स्टेप क्या है, आपने इक्वेशन 5 से इक्वेशन नंबर 6 बनाई, तो जो भी इक्वेशन नंबर 6 आई है इसे इक्वेशन नंबर 4 में डालिए। पुट इक्वेशन नंबर 6 इन इक्वेशन नंबर 4, वी गेट, क्या आया मेरे पास जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, ध्यान से देखिए। 2y की जगह अब क्या डालना है, ये आ गया 3x एज इट इज, प्लस 2y की जगह डालोगे 3x - 6/2, 2y की जगह पे ये वाली वैल्यू डाल दी, क्योंकि ये भी 2y है, ये भी 2y है, और ये इक्वल्स टू किसके बराबर है, 4 के। एलसीएम लेना पड़ेगा, चलिए लेते हैं एलसीएम। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा है x, तो x का आंसर आएगा, पहले जो भी आंसर आएगा उसे 6 में डाल के y का आंसर ले लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ऐसे एलसीएम ले रहा हूं, तो once you take the LCM, what is the next process with us? So 6x, 3 2 जा 6x plus 3x minus 6 equals to, this 2 of denominator goes to the other side, becomes 8. Now what I get, 9x is equal to 8 plus 6, so 9x is equal to 14, x is equal to 14/9। ये हमारा एलिमिनेशन मेथड में भी x यही आया था, इस बार सब्स्टिट्यूशन को यूज करके भी आंसर सेम आया है। तो x कितना आ गया है, 14/9। मगर इसको करना क्या है, पुट दिस इन इक्वेशन 6। आप x की वैल्यू यहां डालोगे, आपके पास y आना शुरू हो जाएगा। ये थोड़ा सा लेंथी इसलिए हो जाता है, चलिए करते हैं फिर भी। सो 2y किसके बराबर आएगा, x की वैल्यू डालोगे 14/9, 3 इंटू 14/9 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ से y कितना आ जाएगा, देखिए y की वैल्यू हमें निकालना, तो y है ना, है मगर हमारे पास 2y, तो ये 2 भी उधर चला जाएगा। पहले तो ये न्यूट्रलाइज किया, 14/3 हो गया, तो ये हो गया 14 माइनस 18/3 इंटू 4। कैसे आया ये, एलसीएम ध्यान से देखिएगा, 14/3, 3 2 just 6, 18, ये 3 डिनोमिनेटर में जाता, ये 2 ऑलरेडी था, इधर से भी एक 2 आया, 4 हो गया। तो हमारे पास y कितना आ गया, इसका मतलब ध्यान से देखिए, 14 माइनस 18 इज -4, 3 इंटू 4, 4 4 कैंसिल हुआ, तो y कितना आया, -1/3, जो कि सेम आंसर है एलिमिनेशन मेथड वाला। तो x और y फिर से सेम आंसर आ गए हैं हमारे पास फॉर द पेयर ऑफ इक्वेशन। आंसर तो वही रहना है, चेंज थोड़ा होना है, मगर चेंज क्या हुआ है, मेथड ऑफ एप्लीकेशन। आंसर चेंज नहीं होने वाला है। तो यहां पे इस क्वेश्चन की हेल्प से मैंने आपको ये दिखाया एलिमिनेशन मेथड कैसे आंसर देता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे आंसर देता है। पहले आपने एक को कन्वर्ट किया, उसके बाद आपने उसको सब्स्टिट्यूट किया, पुट किया है उसको, तो मेथड का नाम बन गया है सब्स्टिट्यूशन मेथड।
अब लास्ट मेथड की बात करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की। चलिए देखते हैं जल्दी से उसे इस क्वेश्चन के ऊपर कैसे अप्लाई करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, सेम क्वेश्चन, कन्वर्टेड इक्वेशन नंबर 4, 5 पे जब हम पहुंचे थे, हमने एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन इस पे लगा लिया है। लास्ट में अब बात करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, यू हैव टू डील विद द कोफिशिएंट्स। कैसे, ये हमारे पास इक्वेशंस हैं, आप x, y और 1 को कांस्टेंट टर्म्स के लिए 1 यूज करके इसके कोफिशिएंट्स के साथ चलोगे, मगर चलेंगे कैसे, x के लिए आप कोफिशिएंट्स लिखोगे y के, तो वो आएंगे 2 और 4, y के लिए आप कोफिशिएंट्स लिखोगे कांस्टेंट्स, वो आएंगे -4 और 6। कैसे आएंगे -4 और 6, ये चीज एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ सबको। जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है, इक्वेशंस का फॉर्म होना चाहिए ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, dx प्लस ey प्लस f इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए, यहां 0 नहीं था तो मैंने 0 बनाया। कैसे, 4 को इधर लेके आऊंगा वो -4 हो जाएगा, तो ये रहा -4, -6 को इधर लेके आऊंगा वो प्लस का 6 हो जाएगा, इक्वल टू में 0 तभी आएगा। कांस्टेंट के लिए आप लिखोगे x के कोफिशिएंट्स जो कि है 3 और -3, इसके बाद एक और टर्म में आप y के कोफिशिएंट्स फिर से लिखोगे, वो है 2 और 4। अब अगला काम क्या है हमारा, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए, द सॉल्यूशन इज गिवन बाय, द सॉल्यूशन इज गिवन बाय x ओवर इक्वल्स टू y ओवर इक्वल्स टू 1 ओवर। अब ये डिनोमिनेटर टर्म्स कैसे लेके आनी है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, यू विल मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट्स इन दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड that I have already discussed in the previous episode which is talking about the cross multiplication method. I hope आपने वो देखा होगा और आपको ये अप्लाई करना आता है। तो चलिए करते हैं x के लिए। x के लिए क्या आएगा डिनोमिनेटर में, 2 6 जा 12 -16, so this is here 4 4 जा -16। y के लिए क्या आएगा, -4 -3 12 -6 3 जा 18। कांस्टेंट के लिए क्या आएगा, 3 4 जा 12 माइनस प्लस 6, ये हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास टर्म्स आ गई हैं हमारे पास, तो हमारे पास आया क्या, देयरफॉर वी गेट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया ना देखो कोफिशिएंट्स का, तो इसलिए मेथड का नाम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये वीडियो एपिसोड में भी बताया हुआ पिछले वाले में जहां पे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। तो जल्दी से इसे सिंप्लीफाई करते हैं, x ओवर हमारे पास क्या आया, 12 प्लस 16 इट इज इक्वल टू 28, ओके, इट इज इक्वल टू y ओवर 12 minus 18 that is -6 equals to 1 over 12 plus 6 18, fine, so we got। अब करना क्या है सॉल्यूशन के लिए, x को इसके साथ कंपेयर कीजिए और y को इसके साथ कंपेयर कीजिए, so what do we get, this implies x over 28 is equal to 1 by 18। इसका मतलब x किसके बराबर है, 28 by 18 के बराबर, और ये किसके बराबर है, 14 by 9 के बराबर। सेम आंसर 14 by 9 लाइक इन द फर्स्ट टू मेथड्स वी गॉट। अप्रोच देखिए कंप्लीटली डिफरेंट, कोफिशिएंट्स देखिए कंप्लीटली डिफरेंट, मगर आंसर चेंज नहीं हुआ है। व्हाट वी गेट फॉर y नाउ, आल्सो y by -6 is equal to 1 by 18, this implies y is equal to -6 by 18 which is equal to -1 by 3, same answer। So for the same question with the same approach हमने तीनों आंसर्स निकाले, तीनों मेथड्स के साथ, और हमारा आंसर चेंज नहीं हुआ है। तो जिन बच्चों को ये प्रोसेस समझ में आई है कमेंट करिए, आपको ये मेथड समझ में आ गया है। जिन्हें कहीं पे भी डाउट है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके डाउट्स डालिए, कहाँ कौन सा स्टेप क्लियर नहीं है, आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे, आपसे साथ पर्सनली डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे इन तीनों मेथड्स को निकालना है। एक होमवर्क टास्क छोटा सा मैं आपको दे रहा हूं, ये क्वेश्चन था जहां हमने डिस्कस किया है सिर्फ और सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन को, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशंस डिस्कस नहीं हुए हैं। ऐसे क्वेश्चंस ढूंढिए बुक में से, एक्सरसाइज में से जाके, अगर सॉल्व होते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो डालिए कमेंट सेक्शन में, और हिट कीजिए लाइक बटन को और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। तो देखते रहिए ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस हमारी वेबसाइट पे भी, जहां जाके आप बड़े ही इंटरेस्टिंग वे से मैथमेटिक्स सीख सकते हैं, अपना नॉलेज क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं। देखते रहिए SPS यूनिवर्सिटी विद मी दीपक शर्मा ओनली। टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।